Hello students of class 4th, I am going to teach you science. Chapter 2, The Food Factory. Let's start the study. Chapter 2, The Food Factory. Plants are living things. Green plants make their own food. Each plant leaf is a little food factory. Mostly all varieties of leaves are in varying shades of the green color due to presence of chlorophyll. Only green leaves can make food for the plant in the presence of sunlight. No other green plant or part of plant or non-green plant of leaf can make the food. पौधे जीवित थिंग्स हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रत्येक पौधे का पत्ता एक भोजन का कारखाना होता है। ज़्यादातर सभी प्रकार की पत्तियाँ अलग अलग रंगों में होती हैं। हरे रंग में क्लोरोफिल की संभावना के कारण केवल हरे पत्ते पौधों की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बना सकते हैं। पौधों का कोई अन्य हरा हिस्सा या पत्ती का कोई गैर हरा हिस्सा सूरज की रोशनी में भोजन नहीं बना सकता है। टाइप्स ऑफ लीव्स. डिफरेंट plants have different type of leaves. Sometimes a leaf is broken down into smaller part called leaflets, as a gulmohar, mulberry, rose, eucalyptus and citrus. पत्तियों के प्रकार. विभिन्न प्रकार के पेड़ों में विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं. गुलमोहर, शहतूत, गुलाब, नीलगिरी और सीट्रस के रूप में लीफलेट नामक छोटे भागों में कुछ समय में एक पत्ता टूट जाता है. A typical leaf has the following parts. The flat part of a leaf is called the leaf blade. It is green in color due to presence of green pigment called chlorophyll. If you observe the black side of a leaf, you will clearly see many lines. These are called veins. Running through the middle of a leaf is a thin tube. This is called the midvein. पत्तियों के भाग. एक विशिष्ट पत्ती के निम्नलिखित भाग होते हैं. पत्ती का सपाट भाग को पत्ती का ब्लेड कहा जाता है. तो ये हरे रंग की होती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. यदि आप एक पत्ती के पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से कई नींबू दिखाई देंगे. पत्ती के बीच से गुजरने वाली शिराओं को एक पतली नली कहा जाता है जिसे मध्य शिरा कहा जाता है. There are other smaller tubes that run from the main vein and are called side veins. They carry water and minerals to all the part of a leaf. The lower surface of the leaf contains tiny pores of opening called stomata. They help the leaf to exchange gases present in the air. यहाँ पर एक छोटी ट्यूब होती है जो मेन वेन से जाती है जिसे साइड वेन्स कहा जाता है. वे पत्ती के सभी भागों में पानी और खनिज ले जाते हैं. पत्ती की निचली सतह में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है जो पत्ती को हवा में मौजूद गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. प्लांट्स मेक देयर फूड जनरली इन लीव्स with the help of sunlight, air and water. This process is called photosynthetics. Photo means light and synthetics means putting together. पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं. पौधे अधिकतर अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं. सूर्य की रोशनी, पानी और हवा की सहायता से. इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स रोशनी और सिंथेटिक्स मीन्स एक साथ रखना. Leaves are the kitchen of the plant. The chlorophyll in leaves traps sunlight and uses it to make food. They also use carbon dioxide and water to make food. The roots absorb water and nutrient from the soil. The stem then take water and nutrient to the leaves. पत्तियां पौधों की रसोई हैं जो पत्तियों को क्लोरोफिल से तपती धूप में डालती हैं और इनका उपयोग वे भोजन बनाने के लिए करते हैं ताकि भोजन मिट्टी के तने से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके और पत्तियों के दौरान पत्तियों तक पानी और पोषक तत्व ले जाएं. During the process of photosynthesis, the leaves use the energy of the sun to change water and carbon dioxide into a kind of sugar and oxygen. This sugar is then taken to all parts of the plant by the stem and the veins. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों की सूर्य की ऊर्जा
का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्रकार की चीनी और ऑक्सीजन में बदलने के लिए करती हैं, जो इस चीनी को तब सभी भागों में ले जाती हैं, पौधे, स्टेम और नसों द्वारा। The plant uses some of this food of producing more branches and leaves, making flowers, fruits and seeds. Extra food is stored in different parts of plants in the form of a substance called starch. The starch is stored in leaves, roots, stem, seeds and fruits. पौधा इस भोजन को उपयोग अधिक शाखाओं और पत्तियों के फूल बनाने, फलों और फलों के बीज बनाने के लिए करता है। अतिरिक्त भोजन पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। स्टार्च नामक पदार्थ का रूप पत्तियों के तने के बीज और फलों में जमा हो जाता है। टेस्ट फॉर स्टार्च। वी कैन परफॉर्म द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स यूजिंग ए केमिकल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। टेक ए लीफ ऑफ एनी हेल्दी plant. Boil the leaf first in water and then in alcohol. Now, boil the leaf thoroughly. Wash it under cold water. Take this leaf in a dish. Put few drops of iodine on it. The color of the leaf will change into blue-black color. This shows that starch is the food prepared by leaves during photosynthesis. हम पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण कर सकते हैं। आयोडीन के रासायनिक समाधान का उपयोग करके किसी भी स्वस्थ पौधे की एक पत्ती को पहले पानी में उबाल लें और फिर शराब में इसे ठंडे पानी से धो लें। इस पत्ती को एक डिश में लें, उस पर आयोडीन की कुछ बूंद इस पर डालें। पत्ती का रंग नीले और काले रंग में बदल जाएगा। ये दर्शाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों द्वारा तैयार भोजन स्टार्च है। फंक्शंस ऑफ ए लीफ। लीव्स आर द फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर यूज्ड। एक पत्ती के कार्य। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण फोटो प्रक्रिया के लिए भौतिक प्लेटफॉर्म है जिनका उपयोग किया जाता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट टू मैक्सिमम द प्रोटेक्शन ऑफ फूड। भोजन के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए संयंत्र के सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसेसियस एक्सचेंज। वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करना है। टू असिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट, सम लीव्स आर funnel shaped in order to actively collect water which is then directed to the roots. पौधे के लिए पानी के संग्रह में सहायता करने के लिए कुछ पत्तियों को फर्नल के आकार का किया जाता है ताकि पानी को सक्रिय रूप में इकट्ठा किया जा सके। टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू द स्टेम एंड रूट सिस्टम बिलो। नीचे स्टेम और जड़ प्रणाली को छाया और आश्रय प्रदान करने के लिए बताया गया है। इंटरडिपेंडेंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स आर ईटेन बाय herbivores and herbivores are eaten by carnivores. Thus, there is a flow of energy in the form of food. This is known as food chain. पौधों और जानवरों के बीच परस्पर निर्भरता। सभी जानवर सीधे या परोक्ष एक से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। ग्रीन पौधे सूर्य की ऊर्जा को फंसाते हैं और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधों को जड़ी बूटियों द्वारा खाया जाता है और मांसभक्षी मांसाहारी लोगों द्वारा खाया जाता है। भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। चेन। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. इट इज़ essential to maintain a balance in nature. If the number of plants decreases extremely, animals will die due to lack of food. In the same way, if the number of animals reduce extremely, the amount of carbon dioxide given out
will not be enough for all plants. Therefore, it is essential to maintain a balance between plants and animals. जंजीर, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जो पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि पौधों की संख्या कम हो जाती है तो भोजन की कमी के कारण जानवरों की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से अगर जानवरों की संख्या बेहद कम हो जाती है तो बाहर दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सभी पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए पौधों और जानवरों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।